Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to discuss phrasal verbs. What are the phrasal verbs? When do we need to use them? Will be getting more scores when we'll be using phrasal verbs or idioms? The answer is yes or no. This is something you'll get to know in today's video. But before starting, please subscribe my channel. अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल एंड कंटेंट अच्छा लगता है तो इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? सिंपली स्पीकिंग, किसी भी वर्ब में कोई भी वर्ड ऐड कर देना, चाहे वो प्रेपोजिशन हो चाहे वो एडवर्ब हो, वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब. सो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. आपके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो यही है. Phrasal verbs are verbs wherein with the verb we add either adverb or preposition or both of them. Verb plus adverb plus preposition. There are certain phrasal verbs. Let's say कि there is one which is phrasal verb, the other is prepositional verb, and the third is phrasal prepositional verb. So this is phrasal prepositional verb, this is prepositional verb, and this is phrasal verb. What are prepositional verbs? Prepositional verbs are those which cannot be separated. We have two words in a phrasal verb, or let's say three words, but those cannot be separated because it is a prepositional verb, whereas in phrasal verb it can be separated. Okay, so I believe this is clear to you. Now I'll discuss the examples, because without examples आपको कुछ भी clear नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने phrasal verbs कैसे और कहाँ पे यूज़ करनी है. Another thing, where all can you use phrasal verbs? Phrasal verbs आप यूज़ कर सकते हो in your letter writing, in essay writing and in report writing. With the help of phrasal verbs, it shows that you have clear knowledge about the linguistic elements. So examiner also wants to know whether the student is knowledgeable enough. If you are knowledgeable enough, you will be using various linguistic elements such as phrasal verbs, idioms, but there is no point of adding any phrasal verb or idioms redundantly. So it's better you use them once they are needing or when they are needed. Okay, so whenever they are in need, you will be using these. ठीक है? Now proceeding further, talking about the first one. The first one is check out. What is check out? Check out is basically when you leave the hotel. You have already enjoyed your stay in the hotel and you are leaving the hotel, and while leaving you do the final documentation, you give the final payment, and luggage and all, each and everything is done. So this is the particular time check out. This is something which happens in the airport and in hotel lobby also. So let's see, the hotel reception area, the hotel front desk area is usually crowded with tourists during the checkouts. So with the customers भी बोल सकते हैं during checkouts is usually crowded. So checkout हमने use करा, but we cannot use checkout separately. So check out. Check in का मतलब होता है when you enter the hotel, when you checked in the hotel, they'll give you a room, they'll designate a room to you, you'll show them your documents, the Aadhaar card or one thing or the other. Along with that, you'll make some part payment to them in order to get your room booked. So things like such will be done. This is known as check-in, and there are check-in and check-out timings also. So उसके basis पे what you can say, during the check-in there were various customers at the reception area of the hotel, or there was a huge rush at the check-in counter of the airport, at the domestic टर्मिनल. सिंपल डोमेस्टिक टर्मिनल पे चेक इन काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश था. समझ आ गया फ्रेजल वर्ब ये कैसे यूज़ करनी है. नेक्स्ट इज ब्रेक इन. ब्रेक इन का मतलब होता है कि जब आप किसी के घर में फोर्सफुली एंटर कर रहे हो. लेट्स से यू आर नॉट एट योर होम एंड आई हैव एंटर्ड योर हाउस फोर्सफुली. सो वो फोर्सफुली एंटर कर लेना, आपका लॉक तोड़ के एंटर करना, ये क्या होगा? ब्रेकिंग इन. शी ब्रोक इन माई हाउस
while I was at movies. So जब मैं मूवीज पे थी उसने मेरा घर का दरवाजा तोड़ दिया. She broke in my house while I was at movies. ठीक है. या फिर she forcibly entered my house. She broke in my house due to frustration. ओके, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे तो she broke in my house. ठीक है. और after the fight with her mother, her daughter, after the fight with her mother, she came to she broke in my house. Simple. After the fight with her mother, she broke in my house. जब मेरी उसकी मदर के साथ फाइट हुई, after I had a fight with her mother, she broke in my house. वो मेरे घर आके कर दिया ऐसा, उसने लॉक तोड़ दिया या एंटर करा फोर्सफुली. सो ये चीज़ है. ब्रेकआउट क्या होता है? देखो, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपकी कार ख़राब हो गई होगी रास्ते में, आप कहीं जा रहे हो, लेट्स से वेडिंग में जा रहे हो, सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन, मे बी सम मीटिंग, एंड योर कार ब्रोक आउट. सो बेसिकली जब भी आपने बोलना है कि योर कार स्टॉप फंक्शनिंग या फिर कोई मशीन के पार्ट से रिलेटेड बोलना है, सो यू विल से माई कार ब्रोक आउट ऑन द वे टू माई कजन्स वेडिंग. ठीक है. सो जब आप अपने कजन की वेडिंग में जा रहे थे, वॉट हैपन्ड? योर कार ब्रोक आउट. नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू. इट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लेटर राइटिंग. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. मैं आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ. लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज़ को वेलकम करना, किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होना. लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. ठीक है. सो मैं उत्सुकता से वेट कर रही हूँ आपको मिलने के लिए. दैट इज लुक फॉरवर्ड टू. अब ये जो लुक फॉरवर्ड टू है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब. प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब. आई बिलीव आपको क्लियर हो रहे हैं ये सारे वर्ड्स. नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट 5. सो द लास्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स, and there is a surprise at the end, so don't forget to watch the video till the end. Another thing, I would like you to answer each and every phrasal verb. Basically, what do you need to do? You need to prepare one sentence on every phrasal verb so that you get hold of it. You will get to know how you will be using in your letter and essay writing. So उसी के basis पे you need to do it. The next one is call off. What is call off? किसी चीज़ को end time में cancel कर देना. ठीक है. She called off the class at the last moment. So उसने क्या करा? Last moment पे class कैंसिल कर दी. कैंसल्ड समथिंग जो कि शेड्यूल ऑलरेडी हो चुकी है. लेट्स से मेरी क्लास शेड्यूल्ड है किसी स्टूडेंट के साथ 6 o'clock की और मैंने एंड टाइम में कैंसिल कर दी, कुछ इमरजेंसी आ गई. तो शी कॉल्ड ऑफ द क्लास. ठीक है. कॉल्ड ऑफ क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. यहाँ पे हम वर्ब की फॉर्म ज़रूर चेंज करेंगे बट एक की चेंज करते हैं, दोनों की नहीं. शी कॉल्ड ऑफ द क्लास एट द लास्ट मोमेंट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसी एट हर होम. ठीक है. सो दिस इज द वे इट विल बी यूज्ड. नेक्स्ट इज वर्कआउट. वर्कआउट करना क्या होता है? किसी चीज को सॉल्व कर देना. ठीक है. सो गवर्नमेंट along with the citizens of a country can work out this menace together. So वो इस serious problem को solve कर सकते हैं एक साथ मिलके. Can work out this menace together. solve कर सकते हैं ये problem. इस तरीके से यूज करा. Next is watch out for. What is watch out for? किस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो? Let's say अगर मैं watch out for की बात करूं, कोई information है. ठीक है. So आपने वॉच आउट फॉर का बेसिकली जो मीनिंग है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली वॉच आउट फॉर का मतलब होता है बी केयरफुल. ठीक है. जस्ट वॉच आउट फॉर द एंड ऑफ द रोड देयर इज अ स्कूल. जस्ट वॉच आउट. ठीक है. फॉर द एंड ऑफ द रोड देयर इज अ स्कूल एंड चिल्ड्रंस माइट बी कमिंग आउट ऑफ द स्कूल. सो बेसिकली क्या हो रहा है? वॉच आउट के लिए हम इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं. ठीक है. वॉच आउट फॉर. अनदर इज रैप अप कर देना, चीजों को वाइंड अप कर देना. इट्स ऑलरेडी बिन 3 hours of the discussion, or it's already been 3 hours we have been discussing. Let's wrap it up.
ओके, इट्स ऑलरेडी बिन 3 hours, लेट्स रैप अप द डिस्कशन, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, और लेट्स रैप द डिस्कशन अप। सो मैंने क्या करा, दोनों वे से उसे यूज कर लिया कि खत्म करो अब बात को, बहुत देर हो गई है, जस्ट रैप अप द थिंग, जस्ट रैप अप द टॉपिक, इट्स ऑलरेडी बिन 3 hours, we have to get ready for the class, let's wrap up, okay? नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। ये आप सबको ज़रूर पता होगा कि लुक आफ्टर क्या होता है। बेसिकली लुक आफ्टर होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें देखा होगा, हो सकता है मम्मी पापा दोनों वर्किंग होंगे और ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर करते होंगे। सो माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर मी सिंस चाइल्डहुड, सो they have been looking after me since childhood, so they took care of me, ठीक है, they took care of me, उन्होंने ही मुझे रेज करा। look after is रेज करने के टर्म में ये यूज होता है, look after। there is one last thing, लास्ट फ्रेजल वर्ब जो मैं कह रही थी एक सरप्राइज होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड दिस विल यू विल डेफिनेटली बी यूजिंग, आई हैव जॉटेड इट डाउन फॉर यू, नाउ आई विल टेल यू। बेसिकली इट इज फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है किसी आंसर का, किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना लॉजिकली, दैट इज फिगर आउट। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन। रीडिंग में ऐसा होता है कि नहीं होता, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हो जाता है इनफैक्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन बट आई फाइनली फिगर्ड इट आउट। अब इसमें आपने नोटिस करा कि फिगर आउट जो था उसमें फिगर एंड आउट ये सेपरेट कर लिया, ठीक है। सो सेपरेट कैसे कर लेते हैं फिगर आउट, देयर आर 2 फॉर्म्स ना, एक में सेपरेट कर सकते हैं, एक में नहीं। फ्रेजल वर्ब्स में हम सेपरेट कैन बी सेपरेटेड, सो फिगर आउट। मैंने सेंटेंस भी बोला था, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुडंट सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग, फाइनली आई फिगर्ड इट आउट। सो आई बिलीव आपको फिगर आउट भी समझ आ गया होगा। एक लास्ट में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे देती हूँ, वॉच आउट फॉर का। वॉच आउट फॉर का मतलब था बी केयरफुल ऑफ, किसी चीज के लिए केयरफुल रहना। देयर इज अ स्कूल एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, वॉच आउट फॉर चिल्ड्रन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। सिंपल कि एक स्कूल है एंड ऑफ द रोड में, एंड ऑफ द ब्लॉक में, तो वॉच आउट फॉर, बी केयरफुल ऑफ द चिल्ड्रन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स विच यू कैन यूज इजिली इन योर राइटिंग एंड बेसिकली एनी ऑफ द राइटिंग, लेटर राइटिंग, essay writing and report writing. I believe it will be useful for you. So thanks a lot for watching the video. Don't forget to comment, post a comment if you have any doubts related to this. Thank you.